90-95% of the population, they trade on mobile phones. Our job is now to make sure we make their lives even simpler, providing them with features that help them take the right decision. Are there any risks that are involved when it comes to AI? When you have an AI which is working on a data which is slightly biased, then the outcome will also be in that manner. So one has to be very careful. Customers cannot directly trade with exchange because customer के लिए front end applications, back end operations सब एक intermediary को manage करना पड़ता है. What is that one thing that excites you about the agri commodity marketplace? तकरीबन 40-42% of the population is directly or indirectly involved in agri business. Yes. आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि it can grow by 20-30x. Welcome to this episode of NCDEX IPFT's podcast series, Commodity Derivatives Road: Rise, Opportunities, Achievements and Developments. In this series, we dive into all aspects of commodity derivatives because after all, commodity derivatives सरल है, सही है. Today's guest is Mr. Sunil Katke, a seasoned leader with over 2 decades of experience in the financial service industry. With an MBA and a remarkable career spanning product development, business strategy, innovation, and customer experience, he's held key roles at well-known institutions such as Religare, Angel One, Anand Rathi, and Axis Securities. For the past 4 years, he's been steering the commodities retail business at Kotak Securities. Outside of work, Mr. Katke is passionate about outdoor sports and has a creative side. He enjoys building hobby-grade radio-controlled models like drones, airplanes, and helicopters in his free time. We're thrilled to have him share his thoughts and stories with us today. Welcome, sir, on the podcast. Thanks for having me on this podcast. Yeah. Sir, कैसा रहा आज का दिन आपका? कैसा जा रहा है? कैसा शुरुआत होती है आपके दिन की? It is a busy schedule as such. Like सुबह उठते हैं and then get ready for office. Office को पहुंचने में ट्रैफिक के झिकझिक से आप पहुंच जाते हो and then मुंबई and traffic. You have that fascinating market. Being एक एडवांटेज ये है फाइनेंशियल मार्केट्स में होने का कि द मोमेंट यू लैंड इनटू द ऑफिस यू स्टार्ट लुकिंग एट द टर्मिनल्स, commodity prices ऊपर नीचे हो रहे हैं and you just deep dive into the international markets on commodities because you're flooded with customer queries and आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ऑफिस पहुंच गए और कब आपको शाम में निकलना है घर पे. So एक तो ये है कि this market is something which is like a hobby. जैसे आप विराट कोहली को काम करते हुए नहीं देखोगे, right? He enjoys his job basically. Yes. If you call it as a job. He plays well. So for us also, जहाँ customers जो हैं हमारे वो पैसा दे के ट्रेड करते हैं, अपना टाइम देते हैं, हमको सैलरी मिलती है and in a way हमको इसी मार्केट में सीखने का और काम करवाने का मौका मिलता है. तो it is an enjoyable job. So टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. अभी आप मुझे पॉडकास्ट से पहले बता रहे थे कि इट्स बीन 20 years दैट यू बीन इन दिस इंडस्ट्री. आपने इसको चेंज होते हुए कैसे देखा है? मतलब आज ऐसा टाइम है कि 1 साल पुराना फोन जो है वो अगले साल आउटडेट हो जाता है. Yes. इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एंड यू बीन सीइंग दिस इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 20 years. वो जर्नी, वो चेंज कैसा रहा एंड हाउ हैव यू अडेप्टेड to that change? I have been fortunate enough to work in 3 different eras. मैं अगर 2010 से पहले की बात करूंगा तो उस टाइम पे having a phone was a luxury item. Yes, right? yes. It was not afforded. I mean, it was not very affordable by every person. तो उस टाइम पे मार्केट में काम करना, it was like I used to see clients coming to the office. They used to sit behind the dealer and they used to call to place an order. तो बोलते थे कि अच्छा ये buy करो, ये sell करो. तो फिजिकल इंटरेक्शन बहुत होता था वहाँ पे बिकॉज क्लाइंट्स यूज्ड टू ट्रैवल टू द ऑफिस एंड दे यूज्ड टू फिजिकली सिट एंड ट्रेड. 2010 के बाद जैसे स्मार्टफोन्स का पॉपुलैरिटी बढ़ा एंड पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग यहाँ के इंडिया के भी मैन्युफैक्चरर्स अफोर्डेबल प्राइसेस में स्मार्टफोन्स डिलीवर करने लगे. आई मीन इट डिड नॉट स्टे लग्जरी आइटम एज सच, सो पीपल वेर एबल टू अफोर्ड इट और वो अफोर्डेबिलिटी से थोड़ा ईज ऑफ यूज आ गया. तो जैसे वो ईज ऑफ यूज आ गया तो जो ऑफिस में आके बैठ के काम करने का जो पहले का एक्सपीरियंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा. लोगों का आना कम हो गया बट उनका काम करना कम नहीं हुआ. दे स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन मोबाइल फोन्स. तो इंटरेक्शन फोन पे जब उनको कुछ नीड रहता था तभी होता था बट अदरवाइज पीपल वर कंफर्टेबल ट्रेडिंग ऑन देयर ओन. बट जो थर्ड फेज है 2016-17 के बाद जिसको हम जियो एरा भी बोलते हैं, जहाँ पे मास एडॉप्शन देखने को मिला स्मार्टफोन्स का, जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी पहुंच गई देश के कोने कोने में. लाइक इवन पीपल फ्रॉम डिस्टेंट विलेजेस वेर एबल टू
afford smartphones and cheaper data. क्योंकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का कंपटीशन के चलते prices were affordable and phones की quality, and you can say the smartphone actually became a smartphone during that phase. So people, accepted that as a welcome step, and they were able to capitalize upon that facility, because आज की तारीख में यही बोला जाता है ना कि सिंपल रखो और सरल रखो. और आई थिंक उस टाइम पे एक मैसिव चेंज हुआ. रेगुलेटर ने EKYC का कॉन्सेप्ट अप्रूव कर दिया. तो वहाँ पे जहाँ पे पहले अकाउंट ओपनिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट के थ्रू हुआ करता था, अभी पीपल वेर एबल टू गेट एसोसिएटेड विद अ ब्रोकिंग फर्म digitally. They were able to open an account with a click of their handset. तो क्योंकि चीज़ें आसान हो गई, दुनिया के कोने कोने में you were able to interact with people, you were able to get exposure to global markets on your smartphone. तो उसके चलते अकाउंट ओपन करना, मार्केट के बारे में नॉलेज लेना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना आसान हो गया. लाइक आई मेंशन्ड, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू सी ऑल दीज 3 phases, जहाँ पे फिजिकली लोग आके बैठ के ट्रेड करते हुए देखना, एंड ग्रेजुअली वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए ट्रेडिंग को अपने मोबाइल फोन पे लेके जाना, and obviously contribution from the regulator and government to simplify this entire process. So fortunate enough to see that, because today if we look at it, 2025, 90-95% of the population, they trade on mobile phones. They invest using mobile phones. They get access to research on their mobile phones, and our job is now to make sure we make their lives even simpler by providing them with features that help them take the right decision. तो मतलब आपका भी कोई एक ऐसा ऐप रहता है जिसको वो एक्सेस कर सकते हैं इजीली? Absolutely. So जैसे I work with Kotak Securities. तो Kotak Securities is a firm that offers customers a platform where they can trade or invest on our platform. We are a financial securities company. We have association with all the major exchanges. हमारे जो customers है वो हमारे platform पे आके दूसरे different asset classes में अपने investments या trading जो है कर सकते हैं. तो we provide, one is the technological products जैसे mobile application हो गया, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गया या डेस्कटॉप बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गया, that we provide to our end users, especially the clients who are DIY clients. When I say DIY, do it yourself clients, वो हमारे latest technology upgraded mobile application या web application के थ्रू काम करते हैं. We at the same time also provide a relationship based desk, जहाँ पे clients who want that personal touch, जहाँ पे they want to interact with a relationship manager who can guide him or her in taking that right decision. So we have that desk as well. So you can call Kotak Securities Financial Multiplex, जहाँ पे all types of clients have something to gain from. Be it the exposure to the latest technology, or be it that advantage of interacting with a knowledgeable relationship manager. Commodity markets के अगर संदर्भ में हम लोग बात करें तो उसके आपके लिए ज़्यादा सिंपल हुआ है या पब्लिक के लिए ज़्यादा सिंपल हुआ है, या दोनों अब हैंड इन हैंड जाके अब अच्छे से डील कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है. दोनों के लिए आसान हुआ है, because with technology broking firms were able to scale their reach. देखो, आप एक individual relationship manager on an average in a day they can possibly service 10 or 20 customers, right? तो अगर आपके पास 100 relationship managers भी हैं तो आप तकरीबन 200, 250, 300 क्लाइंट्स को आप सर्विस दे पाओगे, या तो 1000 क्लाइंट्स को आप सर्विस दे पाओगे. बट विथ टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग, we are now able to reach out to lakhs together customers. And for customers also, now it is becoming a way by which mobile phones become a part of their life. Of course. If you look at it, on an average, individual spends close to 5 hours on the smartphone. For sure. और वो भी हम बोल रहे हैं कि उनके productive hours में. अगर आप 24 घंटे में 9 घंटे रात के आप निकाल दो, तो 15 घंटे में 5 घंटा is like 1/3 of their life is on smartphone. True. And we having our application on that smartphone is something which helps us in reaching out to these people in the best way possible. And customers के लिए भी एक convenience की बात है. जैसे आज की तारीख में हर चीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है. For sure. Right from ordering food online to booking a cab to go somewhere, और ऑनलाइन शॉपिंग हो गया. आपको कुछ भी करना है, आपको मूवी जाना है, मूवी टिकट भी आप मोबाइल पे ये करते हो. तो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको किसी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के ऑफिस जाके बैठना है.
now you can on at the comfort of your home Yes. आप घर पे बैठ के आपके स्मार्टफोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशंस भी अभी इतने सिंपल हो गए हैं. आई मीन ideally broking firm is now looking at providing a platform which is so user friendly कि even a first time user can easily predict कि how to go to a market watch, how to place an order. So it is that simple, because if you are not simplifying that process to your end user, competition is fierce in this market. 10 से 12 आपको बड़े फिनटेक्स आपको देखने को मिलेंगे इस इंडस्ट्री में. So having a platform which is very easy to understand और यूज़र फ्रेंडली होना एक गेम चेंजर के तौर पे काम करता है. तो हमारी जो टेक टीम है तो इसी स्टेप्स पे काम करती है. दे टेक फीडबैक फ्रॉम रियल टाइम ट्रेडर्स एंड दे इम्प्लीमेंट द सजेशंस इन अ वे एंड यूजर्स को आसानी से इसमें काम करने का मौका मिलता है. तो सर जो कमोडिटी मार्केट्स होती हैं उस पे अगर ट्रेड करना हो, एक जिस इंसान को ट्रेड करना है और मार्केट, उसके बीच में एक ब्रोकिंग फर्म का एग्जैक्टली काम क्या होता है? उसका रोल ये होता है कि इट इज़ लाइक अ person who is enabling end user to connect to the market directly. तो आप बोल सकते हो कि facilitator का काम होता है, एक enabler का काम होता है. तो we are the intermediaries who connect the end user to the exchange platform. Customers cannot directly trade with exchange. कर ही नहीं कर सकते हैं, because customer के लिए front end applications, back end operations सब एक इंटरमीडिएट को मैनेज करना पड़ता है. एंड एक्सचेंज कैन नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू द क्लाइंट. दे नीड सपोर्ट ऑफ इंटरमीडियरीज. और इंटरमीडियरीज का काम है कि क्लाइंट को एक्सचेंज से कनेक्ट करना, क्लाइंट को मार्केट से कनेक्ट करना, और उनके जो भी फ्रंट एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, बी इट इन द फॉर्म ऑफ providing them with mobile applications, web या desktop applications where they execute their trades, to managing their back-end processes. Managing the back-end processes in the sense जो आपने कल ट्रेड लिया हुआ है उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है या मार्जिन यूटिलाइजेशन हुआ है, उसका एक मार्जिन रिपोर्ट बनता है, उसका एक लेजर बनता है, उसका एक P&L स्टेटमेंट बनता है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है. तो फैसिलिटेटिंग द कस्टमर्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर एंड टू एंड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी, राइट फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड, ये इंटरमीडिएट का रोल होता है, काम होता है. Yes. तो सर अभी जो टेक्नोलॉजी की बात हुई, आपने यू राइटली सेड कि मिनिमम से मिनिमम 4-5 घंटा तो इंसान फोन पे दे ही रहा है. बहुत ऐसी प्लेटफॉर्म्स भी हैं सोशल मीडिया पे ही, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स होते हैं ऑफ द मार्केट. तो इफ समवन हु इज न्यू टू द मार्केट, वो अगर कदम रखना चाह रहा है मार्केट में, वो कैसे चुने कि ये एक सही ब्रोकर है या ये एक सही ब्रोकरिंग फर्म है और मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए मार्केट में अगर मुझे डील करना? तो देखिए, सबसे पहले इफ यू वांट टू चेक वेदर द मेंबर विथ हुम यू आर ट्राइंग टू गेट एसोसिएटेड विद, वेदर ही इज अ लेजिट ब्रोकर और नॉट, तो आप सबसे पहले एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उनके साथ जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड मेंबर का एक लिस्ट जो है वहाँ पे होता है. तो इफ आई एम अ न्यू इन्वेस्टर और ट्रेडर हु वांट्स टू गेट इनटू दिस फील्ड, तो फर्स्ट चेक वेदर द पर्सन विथ हुम और द ऑर्गेनाइजेशन विथ हुम यू वांट टू एसोसिएटेड विथ इज अ पार्ट ऑफ दैट लिस्ट और नॉट. आज की तारीख में 10 से 15 जो बड़े मेंबर्स हैं उनका तो आप मार्केट में नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, दीज पीपल आर लेजिट, राइट. सो easiest way है. But हाँ, if you get a call where you have not heard the name, right, of that institution, and if they offer you something which is too good to be true, then you need to be a bit careful, because like you mentioned, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी है, तो मोबाइल आपके पास है, तो मोबाइल के थ्रू n number of people will try to reach out to you, and they'll offer you something which can be hazardous, so you have to be careful. Like I said, exchange के प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे आपको रजिस्टर्ड मेंबर का लिस्ट दिखेगा, और उसमें अगर नाम नहीं है तो आई थिंक दैट इज अ रेड फ्लैग. एंड डाउट के नजरिए से देखिए, अगर कोई आपको ऑफर कोई ऐसा देता है जहाँ पे इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि पैसे बनाना बहुत आसान नहीं है. उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है. एंड जो प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं वो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे. दे विल टॉक टू यू अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ, एंड दे विल ट्राई टू हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग. कहीं मतलब ऐसा लग रहा हो कि 10 रुपए सीधा 1 लाख बन जाएगा, तो सोच लो पहले. हाँ, वो पता लगे वो 10 भी चला जाए. करेक्ट. ट्रू. बट सर, मार्केट्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्री कमोडिटीज में अभी ऐसा क्या ट्रेंड है जो आपने नोटिस किया है एंड यू थिंक दैट दिस विल बी बेनिफिशियल? देखिए, एग्री मार्केट, इंडिया बीइंग अ एग्री डोमिनेटेड कंट्री, अगर हम इंडिया में जो वर्किंग
पॉपुलेशन है अगर हम देखते हैं तो क्लोज टू 40 to 42% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. ओके, और एग्रीकल्चर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स क्लोज टू 18-20% ऑफ इंडियाज GDP. सो इट इज अ मैसिव मार्केट इन इंडिया. और आज की तारीख में अगर हम डेरिवेटिव एक्सचेंजेस पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो पार्टिसिपेशन देखते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ हेडरूम इन दैट स्पेस. जो एक्चुअल वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आना, उनके जो बिजनेस के गोल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं, उसको मीट करना, आई कैन से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हेडरूम लेफ्ट बिकॉज a lot of people, maybe due to lack of knowledge or lack of interest, they are not a part of this platform. More and more people I interact with who are a part of agri value chain, I come to hear from them कि सर ये तो प्राइस फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है ये तो बिजनेस का रिस्क है, ये तो बिजनेस का पार्ट है. आप कोई भी बिजनेस करोगे तो बिजनेस में तो रिस्क होता ही है. बट द मोमेंट वी हाईलाइट देम कि दिस रिस्क कैन बी मैनेज्ड, सो दीज पीपल स्टार्ट सीइंग कि अच्छा इसको कैसे मैनेज करता है आप बताइए. तो दैट क्यूरियोसिटी कम्स इन देयर माइंड एंड वी ट्राई टू हेल्प देम आउट कि ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन है इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो. द मोमेंट दे रियलाइज दे कम टू आवर प्लेटफॉर्m and they start using this hedging tool, and the moment they start seeing its impact on their business model और उनके P&L पे उसका इम्पैक्ट जब भी वो देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि इतने सालों से जो हम इसको एज ए बिजनेस रिस्क देखते थे और इसको हम अपने P&L में अकोमोडेट करके जाते थे, इसको टैकल करने का तरीका तो ऑलरेडी था, तकरीबन 20-22 साल से था, बट हमने इसको यूज़ नहीं किया था. तो आज की तारीख में जो चेंज हमको नज़र में आ रहा है ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेन जो है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आके अपने रिस्क को कम करने के जो फ़ायदे हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हमको देखने को मिल रहा है. तो दिस इज़ वन चेंज. दूसरा, पीपल हैव नाउ स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो. पहले सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचा जाता था कि मैंने ये क्रॉप या ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मैंने अगर इतना स्टॉक रखा हुआ है तो ये प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, इतना ही सोचा जाता था. व्हाट इफ़ द प्राइस इज करेक्ट, उसमें जो लॉस होगा उसका कोई प्लानिंग ही नहीं हुआ करता था. तो नाउ रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस प्लानिंग. उनका जो डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन गया है. तो दैट इज समथिंग विच आई हैव सीन रिसेंटली हैपनिंग विद द वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ पीपल हैव बिकम मोर अवेयर एंड आई कैन सी दैट दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस मार्केट as a part of their business, as a part of their risk management strategy. तो ये एक चीज़ जो है मैंने नया देखा हुआ है यहाँ. सर, टेक्नोलॉजी में अभी रिसेंट जो एक बूम आया है वो AI का आया है. तो AI से कितना अफेक्ट पड़ा है लोगों के डिसीजन मेकिंग में? बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड जस्ट गो टू लाइक एन AI ऐप एंड वो नहीं होता कि यार इसमें इन्वेस्ट कर दूं, एंड AI से एडवाइस लेके दे कम टू यू. तो are there any risks that are involved when it comes to AI? How has AI been advantageous when it comes to this? तो AI का कितना बड़ा रोल रहा है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक एनेबलर है. इट हेल्प्स यू इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बट इट कैनॉट रिप्लेस योर इंट्यूशन और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट वर्क्स ऑन अ सर्टन डेटा, हिस्टोरिकल डेटा. जो डेटा फीड है उसके बेसिस पे वो एक प्रिडिक्ट करता है आउटकम को. But at times that data can be biased. When you have an AI which is working on a data which is slightly biased, then the outcome will also be in that manner. So one has to be very careful. The moment you start using AI, yes, it will save time, it will analyze certain things and give you output, but at the same time, the trader or investor need to apply their own due diligence to verify whether the output that you have received is logical enough, and then you take the decision. तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि AI का advancement in a way it is a very good step towards simplifying your investment decisions, but entirely relying on AI to take all your financial decisions can at times be risky, because AI is a computer system technology tool at the end of the day, or it is susceptible to cyber security threats and other things. So you have to be a bit careful about using this tool, especially this is a new thing to the financial markets. Yes. So maybe 5 years down the line, these risks will be taken care of over a bit of time. बट कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ ऐसा डील किया हो कि यार मुझे तो AI ये बता रहा है, तुम उल्टा कैसे कह रहे हो, आई ट्रस्ट AI मोर देन? बहुत बार हुआ है. क्या बात कर रहे हो? ऐसा बहुत बार हुआ है. पीपल लुक एट अ पर्टिकुलर कमोडिटी स्क्रिप्ट, दे सी कि अच्छा इसका इन्वेंट्री डेटा तो डाउन आया है, तो मुझे AI सिस्टम ने बताया कि इन्वेंट्री डेटा डाउन है तो ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और मैंने खरीद लिया, एंड अनफॉर्चुनेटली द प्राइसेस वेंट डाउन. सो
AI may or may not look at the latest happening or market sentiments, right? अगर ट्रम्प का कोई स्टेटमेंट आने वाला है जहाँ पे क्रूड ऑयल का या कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी का बैन के बारे में सोच रहा है या टैरिफ के बारे में सोच रहा है, तो दैट इज समथिंग विच इज अ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि आप आज देख रहे हो मार्केट में, उसका डेटा कहीं पे भी नहीं है, जो कि AI इग्नोर कर रहा है। तो नॉट नेसेसरी कि AI का जो आउटकम है वो आपको सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इतना आसान होता तो सब लोग पैसे बना लेते हैं। सो AI इज a model, again a computer based model which works on historical data, and it analyzes the things and it gives you an outcome which may or may not work. Again, उसका success rate आपको हर महीना सेम नहीं दिखेगा. Some months it will have 50-60% accuracy, some months it will have 40-50% accuracy. मतलब as low as 30-40%. That is a possibility as well. So like I said earlier also कि आपको आपका इंट्यूशन और आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसको AI के डेटा के ऊपर भी आपको एनालाइज फर्दर करके आपको डिसीजन लेना चाहिए, because and it's always good to consult an expert. Yes. मतलब that's like going to the doctor and be like कि मुझे पता है मुझे ये बीमारी है, मुझे गूगल ने बताया, अब तुम मुझे दवाई दे दो बस. Correct. It's as bad as that. तो सर एक टर्म है मैंने लिखा हुआ था, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. ये एग्जैक्टली क्या होता है? एल्गो ट्रेडिंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो. यहाँ पे आप एक प्रोग्राम लिखते हो जिसमें आप डेटा फीड करते हो कि व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम अ पर्टिकुलर market. So if I am talking about writing an algo, like I said, it is a program, computer program, जहाँ पे मैं अपने पैरामीटर्स को प्री डिफाइन करके ट्रेड एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट कर सकता हूँ. अच्छा, राइट. इफ आई वांट टू से बाय अ कमोडिटी लाइक ग्वार सीड, तो ग्वार सीड में मैंने देखा है कि प्राइसेस ये रेंज में फ्लक्चुएट होते हैं और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हैं. तो मैं एक AI प्रोग्राम लिख सकता हूँ जहाँ पे मैं सपोर्ट के आसपास का एक बाइंग रेंज में AI में प्रोग्राम कर सकता हूँ और उसके एक्स अमाउंट नीचे मैं एज ए स्टॉप लॉस के तौर पे एग्जिट का प्रोग्राम लिख सकता हूँ. और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने 1:3 रखा हुआ है, तो 3 गुना अगर रिस्क के ऊपर जाता है तो मैं बुक कर सकता हूँ. तो ऐसे में प्रोग्राम को ऑटोमेट करके सिस्टम में डाल सकता हूँ एंड देन आई कैन बी आई कैन रिलैक्स बेसिकली, क्योंकि अगर वो मार्केट के जो प्राइसेस हैं अगर वो मेरे रेंज को हिट कर जाते हैं तो वो ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है. तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फीचर. इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड आप जो फीडबैक देंगे या आप जो प्रोग्राम करेंगे उसके बेसिस पे ऑटोमेटेड वे में हाई स्पीड पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है. आपको कंप्यूटर ही कर देगा, आपको बैठने की जरूरत. यस. तो इसके सर एग्जैक्टली अगर हम एग्री मार्केट को ध्यान में रखते हुए बात करें तो उसके आप मुझे फायदे लिस्ट डाउन करके दे सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि कंप्यूटर जो है वो अपने आप परचेज या ट्रेड कर सकता है. यस. द मोमेंट यू यूज AI इन योर सिस्टम, एक तो सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिकॉज स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज समथिंग विच विल इम्प्रूव. आप मैनुअली हर एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज देन यू विल कीप वाचिंग दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. तो जितने भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, अगर मार्केट 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मूव हो रहा है, इफ यू कैनॉट अफोर्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर from 10 to 5 and you are clear about what you want to achieve in a particular commodity. अगर मुझे जीरे में ये ट्रेड लेना है और टर्मरिक में ये ट्रेड लेना है, ग्वार सीड ग्वार गम में ये ट्रेड लेना है, आप मल्टीपल कमोडिटीज के एल्गोस बिठा सकते हो. आप रेंजेस दे सकते हो, स्टॉप लॉस वगैरह क्या है वो डिफाइन कर सकते हो. स्टॉप लॉस यानी किस लेवल पे एग्जिट करना है अगर वो ट्रेड फेवरेबल नहीं होता है. और आप आपके टारगेट्स भी सेट कर सकते हो. एंड वंस यू प्री डिफाइन योर रूल्स and once you enter that program into a system, that algo will keep an eye on all the scripts, or the moment any commodity comes near to the level वो execute करता है. तो एक तो आपको speed of execution achieve हो जाता है. दूसरा आपको फायदा ये हो जाता है कि उसकी accuracy, the chances of it making a mistake is very very minuscule. अगर आप manually आप order डाल रहे हैं तो क्वांटिटी में कुछ गड़बड़ी हो सकती है. आपने 1 लॉट की जगह 5 लॉट डाल दिया बाय मिस्टेक, टाइपो एरर्स वगैरह हो सकते हैं जल्दी में. तो वो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है. और तीसरा, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर के सामने तकरीबन 5-6 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है. आप आपके जो फीड्स हैं एक बार आपने सिस्टम में डाल दिया, एल्गो में डाल दिया, तो दैट प्रोग्राम विल मॉनिटर द मार्केट एंड इट विल एग्जीक्यूट द ट्रेड एज एंड व्हेन you want. Plus you can modify that program as per your wish. तो ये हो गए उसके फायदे. अगर इसका आप नेगेटिव साइड, फ्लिप साइड देखना चाहें तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली, राइट. सो अगेन इट इज ससेप्टेबल टू साइबर अटैक्स बोल सकते हैं.
और कई बार टेक्नोलॉजी फ्रंट पे कुछ ग्लिचेस का इम्पैक्ट भी हो सकता है. तो यू जस्ट नीड टू कीप एन आई वेदर द प्रोग्राम दैट यू हैव रिटन, द एल्गो दैट यू हैव फेड, whether it is working properly or not. तो supervision वहाँ पे रखना जरूरी है. So that is something which you should look at. Plus एक है कि cost. Obviously this technology comes with a cost. Of course, तो yes. जो vendor का आप algo use कर रहे हैं तो they may possibly charge you some AMC or not. तो वो AMC अगर आप afford कर सकते हैं, whether it is giving you or adding value to your investment decision, तो वो एक देखना पड़ता है because it comes at a cost. तो सर as we actually talked about कि आपको 20 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, you must have come across so many cases. तो are there any memorable cases that you want to talk about जहाँ पे आपने maybe बहुत ज़्यादा रिस्क होने से बहुत ज़्यादा लॉस होने से बचा दिया, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपने अपने क्लाइंट को हेल्प किया टू अचीव? देखिए 20 साल का समय बहुत लंबा होता है for and sure. we have come across so many such cases. मुझे एक केस अगर एग्जांपल के तौर पे बताना पड़ेगा तो आई वाज इन जयपुर राजस्थान. वहाँ पे राजस्थान में गुआर सीड, गुआर गम एज ए कमोडिटी बहुत एक्टिवली ट्रेड होता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड कमोडिटी देयर एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ गुआर सीड एंड गुआर गम अब्रॉड. उसके बहुत सारे फायदे हैं. लाइक सो उन क्लाइंट्स को जब मिला, स्पेशली आई वाज एबल टू मीट फार्मर्स, FPOs एंड इवन MSMEs एंड इंडस्ट्रीज देयर. तो जहाँ पे फार्मर्स का हमने ये देखा व्हाइल आई वाज इंटरेक्टिंग, उनका भी थॉट प्रोसेस यही था कि सर मैंने इतना गुआर सीड का मेरा आवक है और आई एम वेरी मच होपफुल कि इस बार प्राइसेस अच्छे होंगे तो आई विल बी एबल टू मेक गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट. तो मैंने बोला कि अच्छा आप प्रिडिक्शन पे जा रहे हैं, आप एक एस्टिमेट दे रहे हैं कि इसका प्राइस ये होगा और मुझे फायदा होगा. व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन? व्हाट इफ इस बार बारिश वगैरह ठीक है, आउटपुट ज्यादा आता है, सप्लाई की भरमार है, डिमांड की कटौती होगी, तो आपके प्राइसेस तो गिर जाएंगे. तो तब आप कैसे मैनेज करोगे? तो लेट्स होप, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वाज देयर. दैट मीन्स उस टाइम पे क्लाइंट्स को प्राइस फ्लक्चुएशन एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस लगता था, जैसे मैंने पहले भी बताया था. तो दे यूज्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट प्राइस ऊपर जाएंगे तो मुझे पैसा मिलेगा और नहीं मिलेगा. तो वी वर एबल टू एजुकेट देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड इनिशियली देयर वाज सम हेजिटेशन, क्योंकि फार्मर्स हैं तो बोलते थे कि अच्छा ये सही है या नहीं, ये मुझे नहीं पता कैसे काम करता है. बट व्हेन वी वर एबल टू गिव देम एग्जांपल्स, एंड 2-3 ऐसे भी फार्मर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी एक्सचेंज पे हेज करना शुरू किया था, तो उनका एग्जाम्पल देखते हुए बताया, तो दीज पीपल वेर एबल टू एटलीस्ट स्टार्ट विद 50% ऑफ देयर क्रॉप बीइंग हेज्ड ऑन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस नहीं था तो उन्होंने 50% हेज करके शुरू किया. एंड आप बोलो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो प्राइसेस गिरे उस टाइम पे. सो आई गॉट अ कॉल बैक आफ्टर 2-3 months कि सर मैं अगर 100% हेज करता तो शायद आई वुड हैव बीन सेफगार्डिंग माय प्राइस. तो ऐसे कॉल्स भी हमको सुनने में आए. दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि अच्छा देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. एंड ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, ऐसे आई कैन से बहुत सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इंडिविजुअल फार्मर्स होंगे या FPOs होंगे, जो कि इस मार्केट का इम्पोर्टेंस रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा नहीं समझ पाए होंगे. उसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होंगे. बट वी वर एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड दीज पीपल व्हेन दे ट्राइड एंड व्हेन दे सॉ कि इट बेनिफिटेड देयर ऑब्जेक्टिव, तो दे केम एंड उसका फ़ायदा देख के उन्होंने आसपास के लोगों को भी ये किया. तो सच सिमिलर एक्सपीरियंसेस आर देयर इवन फ्रॉम MSMEs. आप फार्मर तो एक इंडिविजुअल है, ऐसे 2-3 MSMEs को जब हम मिले उनका भी यही था, बट उनका स्टोरी थोड़ा अलग था. उनको थोड़ा ग्रीड था. वो MSMEs को था कि यार मैं हेज करूंगा और भाव बाद में ऊपर जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा. सो हमने उनको ये क्लैरिटी दिया कि सर एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म रिस्क मिटिगेशन के एंगल से आप देखो, क्योंकि आप एक वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हो. योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. आपका बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन तो है ही, बट इफ यू वांट टू कम ऑन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, इसको अगर आप रिस्क मिटिगेशन के टूल के तौर पे आप देखोगे तो possibly you can at least overcome any unforeseen price falls. Exactly. तो again some of them agreed, some of them hedged 50%. prices गिरे, उनको भी थोड़ा मुनाफा हुआ. So वो केस में थोड़ा greed था, because you cannot look at hedging from profit making tool angle. True. वो आज भी एक challenge है. Even today MSMEs and some farmers they too forget to use this tool because उनको लगता है कि अच्छा इस बार तो prices ऊपर जाएंगे ही, तो they bet on that news, which at times ends on a negative side. Not in their favor. Yes. Sir, जो पहली बारी एंटर करना चाह रहे हैं मार्केट और वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप उनको ऐसा क्या एक सलाह देते हैं, 1-2 पॉइंट्स जो आप हमें बता पाए? देखिए सबसे पहले जो पहली बार ट्रेड करना चाहेंगे
वन हैज टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन डेरिवेटिव मार्केट। जब आपने पहली बार एंट्री किया, इसका मतलब आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है कि वो मेंबर लेजिट है, आपने एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आपने देखा है कि ये सेबी रजिस्टर्ड है, मतलब होमवर्क डन है, उसके बाद ही द मोमेंट यू एंटर द मार्केट, यहाँ पे आपको दूसरा होमवर्क करना है, क्योंकि ये लेवरेज्ड प्रोडक्ट है। सी व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, दीज आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिवरेज्ड प्रोडक्ट्स। लिवरेज्ड प्रोडक्ट यानी आप 10-20% मार्जिन दे रहे हो और आपने ऑलमोस्ट 5x और 6x ऑफ द कमोडिटी वैल्यू आपने खरीदा हुआ है। तो जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन होगा उसका 5 to 6x 8x तक का इम्पैक्ट जो है आपके पीएनएल पे पड़ेगा। जैसे आपने 100 रुपए का माल 10 रुपए देके लिया हुआ है, राइट? तो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको यही बोलेंगे कि डिसिप्लिन, व्हेन आई से डिसिप्लिन, डिफाइन योर गोल्स फर्स्ट, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ट्रेडिंग करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको हेज करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यू हैव टू मेक श्योर आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह टाइमली लगे हुए हैं, और आपके टारगेट्स भी लगे हुए हैं, और छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आप काम करोगे और मल्टीपल ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट करोगे। जो ट्रेड लॉस में जा रहा है उसको आप बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं करोगे। तो ये उसके लिए एक लेसन है। जो इन्वेस्टर है उसको हम बोलेंगे कि भाई आप एक टाइम होराइजन प्री डिफाइन कर लीजिए, आपके रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो डिफाइन कर लो, अकॉर्डिंगली यू डिफाइन योर रिस्क ऑब्जेक्टिव एंड विच एवर मीट्स फर्स्ट देन यू हैव टू एग्जिट। और जो हेजर हैं हम उनको बोलते हैं कि आप प्योरली रिस्क मिटिगेशन के एंगल से आइए इस मार्केट में। डोंट लुक एट इट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट विच विल हेल्प यू इन मेकिंग प्रॉफिट्स एज सच। आपका हेजिंग ऑब्जेक्टिव है तो आपको प्राइस लॉकिंग के एंगल से ही आना है इस मार्केट में। आपके क्रॉप का, आपका जो फिजिकल स्टॉक है उसका एक प्राइस आपको एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ठीक ठाक दिख रहा है, आप उसको वहां पे बेच के एटलीस्ट आप प्राइस लॉक कर रहे हो, सो दैट यू आर सेफ फ्रॉम एनी फ्यूचर अनसर्टन प्राइस फॉल। तो हर एक के लिए जो वन टू डू मंत्रा होगा वो अलग होगा, ट्रेडर के लिए अलग होगा, इन्वेस्टर के लिए अलग होगा, हेजर के लिए अलग होगा। तो सर आज भी इतने साल बाद व्हाट इज दैट वन थिंग दैट एक्साइट्स यू अबाउट द एग्री कमोडिटी मार्केट प्लेस? देखिए, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, इंडिया इज अ एग्री डोमिनेटेड कंट्री। यहाँ पे जैसे हमने देखा तकरीबन 40-42% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वड इन एग्री बिजनेस। तो ये एक ऐसा मार्केट है जो कि बहुत बड़ा बन सकता है आगे चल के। तो वो एक चीज जो है मुझे एक्साइट करती है, बिकॉज इसमें ग्रो करने के लिए हेडरूम बहुत है। प्लस टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग द रोल ऑफ एनेबलर, इवन दो द नंबर ऑफ ब्रांचेस हो सकते हैं कोई ब्रोकिंग फर्म के मेंबर्स के लोकेटेड होंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में। जो पहले चैलेंज था कि फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन से अकाउंट ओपनिंग करना है, रिलेशनशिप मैनेजर का गाइडेंस वगैरह करना है, तो वो चीज़ अभी नहीं रहा। सो नाउ इंडिया हैज़ बिकम लाइक, आप कोई खेड़े में भी हो तो वहाँ से भी आप डिजिटली अकाउंट ओपन करके कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू हैव एक्सेस टू आवर रिसर्च ऑल्सो। वो मुझे फैसिनेट करता है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है और मार्केट में पेनिट्रेशन का जो मौका है आने वाले 5 साल में, मुझे लगता है कि इट कैन ग्रो बाय 20-30x। So that is something which keeps me excited about this market. तो सर एज वी क्लोज द पॉडकास्ट, वो एक ऐसा क्या मैसेज होगा जो आप उस हर इंसान को देना चाहोगे जो हमें अभी सुन रहे हैं? देखिए, अगर एक सेंटेंस में अगर बोलना है तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है वो सही है और सरल भी है। Thank you so much, sir. Thank you so much for being on the podcast. It was such an informative podcast. I hope जितने लोगों ने भी ये सुना है वो सब के सब इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे एंड एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ अब वो मार्केट में स्टेप इन कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, सर. थैंक यू सो मच once again. Thanks for having me on this podcast. Thanks.